तो कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। आज हम करेंगे ओट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे हर्माफ्रोडाइट्स फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स लाइकली कांटेक्ट में आएगा कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। Flowering plants have developed many devices to discourage self pollinations and to encourage cross pollinations। और कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं पोलन के रिलीज़ करेंगे स्टिग्मा रिसेप्टिवली, ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। अब either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollens. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollens cannot be come in contact with the stigma of the same flowers. Both these devices prevent autogamy. The third device to prevent inbreeding is called self-incompatibility. This is a genetic mechanism and prevent self pollen from the same flowers or other flowers of the same plant from fertilizing the views by inhibiting pollen germinations or pollen tube growth in the pistils. Another device prevents self pollination is the production of unisexual flowers। एक और डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन करती है, उसको क्या बोलेंगे? जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोडक्शन करती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये बोथ कहाँ गया? ये बोथ, हाँ ठीक है। if both male and female flowers are present on the same plant, अगर मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट में, जैसे कि कस्तूर और मेज़, ठीक है, ये मोनोशियस हैं। कस्तूर और मेज़ क्या है? मोनोशियस हैं। ये प्रिवेंट करते हैं एटोगेमी बट नॉट जेटिनोगेमी, ठीक है, लेकिन जेटिनोगेमी को नहीं। इन सर्वल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स डेट इन ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, या मेल होगा या फीमेल होगा, उनको बोलेंगे डायोशी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ एटोगेमी एंड गेटिनोगेमी। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollens, compatible pollens of the same species as the stigma. Often, pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, if it is self-incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen। पिस्टल की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करना पोलन को। वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप कंपैक्टिबल होगा, अगर रॉन्ग टाइप होगा तो इनकम्पैक्टिबल होगा। इफ़ इट इज़ राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन, अगर राइट टाइप का होगा तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगी पोलन को और प्रमोट करेगी पोस्ट पॉलिनेटर्स इवेंट्स को, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये डायग्राम्स हैं कुछ, ये जैसे कि ये आ गया पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब होगी, ठीक है। एंटीपोडस ये ऊपर में होते हैं, एंटीपोडस होते हैं, स्नर्चिस से नीचे होता है इधर, तो ये एक्सेल होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया पूरा। अगर जिसने ये पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख सकता है प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है। अब हम करेंगे लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक हो गया था। अब इफ़ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन्स बाय प्रिवेंट पोलन germinations on the stigma or the pollen tube growth in the styles. The ability of the pistil to recognize the pollen followed if it acceptance or rejectance tube growth in the style. The ability of the pistil to recognize the pollens followed by acceptance or rejections is the result of a continuous dialogue
between pollen grains and the pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollens interacting with these of the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollens and pistil components, and the interactions and the interaction leading to recognitions followed by acceptance or rejectance. As mentioned earlier, following compatible pollinations, the pollen grains germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grains move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and styles and reaches the ovary. फिगर इन्होंने बताई ऊपर. अब you would recall that in some plants pollen grains are shed at 2 cell stage. कुछ प्लांट्स में जो हैं pollen grains 2 cell stage में हैं और कंडीशन से वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल्स. इन सम प्लांट्स द जेनेटिव सेल जो हैं वो डिवाइड करते हैं, फॉर्म्स करते हैं टू मेल गमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स एंड द स्टिग्मा इन प्लांट्स विच शेड पोलन्स इन द 3 cells कंडीशन. जब 3 cell कंडीशन में होंगे पोलन ट्यूब्स कैरी टू मेल गमेट. पोलन ट्यूब कैरी करेंगे टू मेल गमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग. पोलन ट्यूब्स आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन इंटर्स वन ऑफ द स्नर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस. पीछे वाले डायग्राम में बताया था कि पोलन ट्यूब्स रीचेस करेगा ओवरी में, इंटर करेगा ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन इंटर वन ऑफ द स्नर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस. डायग्राम इन्होंने बताइए. मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द स्नर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब. ठीक है. All these events from the pollen depositions on the stigma until pollen tubes enter the ovules are together referred to as pollen pistil interaction. As pointed our earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process. It is important. ठीक है. Involves pollen recognitions followed by promotions or inhibitions of the pollens. The knowledge gained in this area would help in plant breeding in manipulating pollen pistil interactions event in incompatible pollinations to get desired hybrids. You can easily study pollen germinations by testing some pollens from flowers such as pea, chickpea, ठीक है, Crotalaria, balsam and vinca on a glass slides containing a drop of sugar solutions about 10%. After about 50 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen tubes. As जैसे कि मैंने ये लगाया कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपने पढ़ना है सभी को, क्योंकि कुछ 12th के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ड्रॉपर हो सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉपर हैं वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जिनको नहीं पता तो वह यहाँ से देख लें. एज यू शैल लर्न इन दिस चैप्टर्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग, चैप्टर 9 ए ब्रीडिंग ऑफ interesting in crossing different species and after genera to combine desired characters to produce commercially superior varieties. अब artificial hybridizations क्या है? Artificial hybridizations is one of the major approach of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only desired pollen grains are used for pollinations and the stigma
and the stigma is protected from contaminations from unwanted pollens. This is achieved by emasculations or bagging technique. अब मैं आपको बताऊंगा emasculations या bagging technique कौन सी है. इफ़ द मेल पार्ट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर मेल पार्ट जो हैं वो बियर करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लोरल फ्लावर बड बिफोर द एंथर dihysis using a pairs of forceps is necessary. This step is referred to as emasculations. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? emasculation. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter papers, to prevent contaminations of the stigma with unwanted pollen. This is called bagging. This process is called bagging. ये बोल रहे हैं कि अगर बाइसेक्सुअल अगर हम रिमूव करेंगे एंथर को फ्रॉम फ्लावरिंग बर्ड्स से बिफोर एंथर डाइसिस यूजिंग ए पेयर्स ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी. दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमेस्कुलेशंस. स्टेप को बोलेंगे इमेस्कुलेशंस. इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव कवर्ड विद ए बैग. हम इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को कवर करेंगे किसके साथ? एक बैग है. ये जैसे कि ये फ्लावर हो गया, ठीक है, इसको हम कवर कर देंगे एक बैग से, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे बैग से सूटेबल साइज से, ठीक है, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशंस ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन. इसकी स्टिग्मा मतलब या जब हम बैग रखेंगे तो जो अनवांटेड मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी पोलन नहीं जाएगा, अनवांटेड पोलन नहीं जाएगा. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बैगिंग, ठीक है. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर्स अटेन्स रिस्पेक्टिवली मैच्योर पोलन ग्रेन्स collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. If the female parent produces unisexual, अगर फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज़ नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन. इनको कोई नीड भी नहीं होती इमेस्कुलेशंस की. द फीमेल फ्लावर्स बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन. फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं उनके बर्ड्स जो हैं वो बैग्ड होंगे बिफोर फ्लावरिंग ओपन, फ्लावर को ओपन करने से पहले ही वो बैग्ड हो जाएंगे. व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिजायर्ड पोलन्स एंड द फ्लावर्स रीबैग्ड. और फिर फ्लावर को रीबैग्ड कर देंगे. मतलब पहले बैग को रखेंगे फ्लावर को ढकने के लिए, फिर उसको उठा देंगे, रीबैग्ड कर देंगे, ठीक है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इनको नीड नहीं होती. अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशंस. इसको हम यहीं तक रखेंगे.